audible. Okay, sir. Okay, you may start the session. We'll start with prayer. Join your hands and close your eyes. Take deep breath. Om Sahana Bhavatu Sahanau Bhunaktu Sahaviryam Karavavahe Tejasvinavadhitamastu Ma Vidvishavahe Om Shanti Shanti Shanti. Rub your hands. When it get warm, massage it on your face. Stand on your mat. Keep distance between both legs and then start rotation. Keep rotation. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Now reverse. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and last 1, and then relax. Take your right leg front and up and down. Start. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Side by first right and then left. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Rotation from right to left. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Reverse. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Relax. Take your left leg front and up and down. Start. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Side by first right and then left. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Now rotation from left to right. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Reverse. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. रिलैक्स. अब हम फुटबॉल को जैसे किक करते वैसे हम करेंगे राइट लेग से. स्टार्ट. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Now left leg. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10. Relax. Now shoulder rotation. Take your hand front and then on shoulder. First inward. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Reverse. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Relax. I'm audible now? Today in Maharashtra there is cyclone condition, so अगर कोई नेटवर्क इशू होगा तो प्लीज एडजस्ट कर लेना. मेरा आवाज आ रहा है ना सबको? ओके. Yeah, it's clear. Okay. Now knee rotation. Start. First inward. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Reverse. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and last 1, and then relax. Now stretch your both leg, bend, and then start. 1, 2. Continue. And then relax. Relax. Stretch your hand. And then go for rotation. Forward direction. Start. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Reverse. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Now long. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Reverse. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Relax. I'll go for Koti Chakrasana. Shoulder level distance between both legs. Stretch your hand front. Then go right side. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relax. Relax your body. Deep inhale, deep exhale. बॉडी को रिलैक्स करना है. Now go for first right side. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relax. Stretch your both leg.
Right leg towards right side. Go down. Stretch your leg. 1, 2, 3, 4, 5. Come back to normal. Then left side. Exhale and go down. 1, 2, 3, 4, 5. Come back. Right side. Go down. 1, 2, 3, 4, 5. Left. Exhale and go down. 1, 2, 3, 4, 5. Relax. अपने लेग वैसे स्ट्रेच करके रखो. Stretch your hand front and then go first right side. 1. नीचे बैठ जाना है and left leg ऐसे left side को stretch करना है. Come back. 2. Now left side. 3. Right. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Relax. Down your hands. Now we go for standing asana, first Tadasana. Inhale and take your hand up. Lock your fingers. Exhale and अपने सिर पर हाथ लेना. Inhale and go up. Stretch your full body. अपना पूरा बॉडी ऊपर की तरफ स्ट्रेच करना है. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Exhale and down. Again, inhale and up. Inhale करके हाथ पर लेना है, ऊपर लेना है. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Exhale and down. Last round. Inhale and up. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relax. Down your hands. Then go for Vrikshasana. Right leg on left thigh. सांस लेते हुए हाथ ऊपर करना है. ऊपर जाके नमस्कार मुद्रा. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Exhale and down. Now left leg on right thigh. Inhale करके हाथ ऊपर लेना है. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Exhale and down. Right leg on left thigh. सांस लेते हुए हाथ ऊपर करना है. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Exhale and down. Last round. Left leg on right thigh. सांस लेते हुए हाथ ऊपर करना है. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Exhale and go down and then relax. दोनों लेग में थोड़ा सा डिस्टेंस रखना है and then go for this. Left right side को पूरा बॉडी झुकाना है. 1, 2, 3, 4,
9, 10. Relax. We'll go for Trikonasana. Stretch your leg. जितना हो सके उतना stretch करना है. Stretch your hand. Right leg towards right side. Exhale and go down. Exhale करते हुए नीचे जाना है. ऊपर की तरफ देखना है. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Inhale and come back. Right leg normal करना है. Left leg left side. Exhale and go down. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Inhale and come back. Left leg normal, right leg right side. Exhale and go down. ऊपर की तरफ देखना है. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Inhale and come up. Left leg left side. Exhale and go down. ऊपर की तरफ देखना है. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Inhale, exhale and come up. Relax. We'll go for Surya Namaskar. First, Namaskarasana, Hasta Uttasana, Pada Hastasana, Ashwa Sanchalan, Parvatasana, Sashtang Namaskar, Bhujangasana, Parvatasana, Ashwa Sanchalan, Pada Hastasana, Hasta Uttasana and Namaskarasana. अब हम इनहेल एक्सहेल करते हुए सूर्य नमस्कार करेंगे. फर्स्ट नमस्कारासन. इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, and relax. Again, one more round. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, and last 12. Now we'll go for sitting asanas. Sit on your mat. Sitting Bhadrasana. Straight your spine. Straight back neck. And then start butterfly. बीच बीच में हमारे दोनों पैर जमीन को टच करना है. Relax. We'll go for Vakrasana. Right leg, left thigh के बाजू में रखना है. Opposite hand up. Lock your hand. Look backward. And normal breathing. Exhale and go. Look back. Normal breathing. 1, 2,
नाउ लेफ्ट लेग राइट थाई के बाजू में रखना है, अपोजिट हैंड मतलब राइट हैंड ऊपर, एक्सेल करते हुए पीछे देखना है, नॉर्मल ब्रीथिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, रिलैक्स, राइट लेग लेफ्ट लेग के बाजू में, अपोजिट हैंड अप, exhale and twist your body, normal breathing 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, relax, now you go for Gomukhasana, stretch your both leg front, right leg down, left leg up, इस पोजीशन में बैठना है, जो लेग हमारा ऊपर रहेगा वही हैंड ऊपर चाहिए, and then lock your both fingers back side, 1 2 3 4 5 7 8 9 10, release, now left leg down, right leg up, जो लेग ऊपर है वो हैंड ऊपर की तरफ चाहिए, फिंगर्स दोनों एक दूसरे में लॉक करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, relax, now stretch your right leg, लेफ्ट लेग फोल्ड करना है, हमारा थंब राइट लेग का थंब पकड़ना है, एंड देन गो अप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, inhale and come up, again one more time, exhale and go down, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, exhale, sorry, inhale and come up, now fold your right leg, stretch your left leg, का thumb हमें पकड़ना है, and then exhale and go up, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, move and come back again one more time, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, come back to normal and then relax, we'll go for pranayama, sit in Padmasana, चिन्ह मुद्रा, हाथों की चिन्ह मुद्रा करके हम थाइस पर हमारा हाथ रखेंगे, 3 टाइम्स ओमकारा, टेक डीप ब्रीथ, आंखें बंद करना है, एंड स्टार्ट ओमकारा, after 3 round relax, rub your hands,
when it get warm, massage it on your face. We'll go 60 strokes of Kapalbhati. हाथों की चीन मुद्रा, आंखें बंद करना है एंड कपालभाति के 60 स्ट्रोक्स सब साथ में करेंगे. स्टार्ट. Relax after 60 strokes. Open your eyes. मैं थोड़ा सा आपको डाइट के बारे में, इम्यूनिटी कैसे बढ़ाना है उसके बारे में एक शॉर्टली बताऊंगी, बिकॉज कोविड के कंडीशन में इम्यूनिटी सबसे ज्यादा मैटर करती है. जिनके पास इम्यूनिटी नहीं उनको ही बहुत मतलब प्रॉब्लम आ रहा है कोविड के कंडीशन में. तो आई एम ए नेचुरोपैथिस्ट, सो मैं कुछ बताऊंगी, तो सब लोग सुनिएगा. फर्स्टली विल डिस्कस अबाउट डाइट. हमारा डाइट है ना, वो जितना सात्विक ले सकते हैं आप उतना सात्विक लेना है. सात्विक मतलब अगर हमने कोई लीफी वेजिटेबल घर में बनाया है तो वो उसका जो वाटर होता है वो वाटर फेंक नहीं देना है. उसका पानी होता है ना वो फेंक नहीं देना. उसमें सब प्रकार के, जब हम बॉईल करते हैं वो वेजिटेबल, उसमें सब प्रकार के मिनरल्स, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, एवरीथिंग इज प्रेजेंट इन दैट वाटर. तो वो पानी हमें फेंक नहीं देना है. अच्छे से सब्जी धो के हमें वो मतलब बॉईल करना है एंड देन वी हैव टू ड्रिंक दैट वाटर. अगेन अगर हमने स्प्राउट्स होते, अगर रात को हमने अच्छे से धोकर भिगोकर अगर हमने रखे तो सुबह का उसका जो पानी होता है वो इतना हमारे बॉडी के लिए इम्पोर्टेंट होता है. इतना मतलब उसमें जो कार्बोहाइड्रेट होता है, फैट्स मतलब फैट नहीं बट प्रोटीन्स, विटामिन जो कुछ होता है, फाइबर्स, वो हमारे बॉडी के लिए इतना इम्पोर्टेंट होता है कि मतलब माय हिंदी इज वीक सो प्लीज एडजस्ट मी. तो बहुत फायदेमंद होता है. इसलिए अगर आपने ये दो चीज आपने डाइट में इंक्लूड कर दी, रोज सुबह स्प्राउट का जो पानी होता है वो ड्रिंक करिए, वो तुम्हारे आपके बॉडी के लिए सबसे अच्छा होता है. अगेन वी कैन ड्रिंक मिल्क. सुबह मिल्क में हल्दी मतलब हल्दी वाला दूध लेना है, उसमें घी घी जितना मतलब 1 चम्मच घी डालना है. उससे भी हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है, अच्छी हो जाती है. एक दो चार चीजें हैं बट मुझे शॉर्टली बताना है, टाइम लिमिट है इसलिए मैंने सब कुछ शॉर्टली बताया. एंड मेरे हिंदी भी वीक है इसलिए मुझे प्लीज एडजस्ट करिएगा. इसलिए विल गो फॉर नेक्स्ट. अनुलोम विलोम. राइट नॉस्ट्रिल से सांस लेना है, लेफ्ट से छोड़ना है, अगेन लेफ्ट से लेना, राइट से छोड़ना. कंटिन्यू प्रैक्टिसिंग. 5 राउंड. स्टार्ट.
Relax after 5 rounds. प्राणायाम से हमारी लंग कैपेसिटी मतलब ब्रीथ लेना, ब्रीथ छोड़ना, इनहेल एक्सेल, लंग की जो कैपेसिटी होती है वो आगे स्ट्रेंथन हो जाती है। उसमें और ज्यादा मतलब जो हमारे लिए ऑक्सीजनेटेड ब्लड चाहिए उसके वजह से जब हम इनहेल करते हैं तो पूरा एक तरह से ऑक्सीजन हमारे ब्लड में मिक्स हो जाता है एंड हमारे बॉडी में पूरा ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है। इसलिए हमारे इनहेल करने का मतलब काउंट करना है 1 2, जितना हम इनहेल करने की कैपेसिटी बढ़ाएंगे, जितना एक्सहेल करने की, उतना ही हमें अच्छा रहेगा। इसलिए इसे नाड़ी शोधन भी कहते हैं। अब विल गो फॉर भ्रामरी। क्लोज योर ईयर्स विथ थंब, अपर फिंगर आईब्रो के ऊपर, मिडल 3 फिंगर अपने आईज के ऊपर 5 टाइम्स इनहेल करना है और सांस छोड़ते हुए हमिंग डी जैसा वॉइस निकालना है। स्टार्ट, सब साथ में करेंगे। Relax after 5 rounds. Rub your hands when it gets warm. Massage it on your face. फ्यूचर में हमें अगर जॉइंट पेन नहीं होना ऐसा हमें जब लगता है तो हमें क्या करना चाहिए? सुबह का जो सनलाइट होता है वो इतना इम्पोर्टेंट होता है, इतना इम्पोर्टेंट होता है कि हमें फ्यूचर में कभी भी जॉइंट पेन का प्रॉब्लम कभी भी नहीं आएगा। इसलिए अगर सुबह के वक्त हमने टेरेस पे जाकर 15 मिनट मतलब 5 मिनट से स्टार्ट करना है, कोई भी क्रीम लोशन सनस्क्रीन वगैरह कुछ नहीं लगाना है, सिर्फ टेरेस में जाना है ऊपर एंड गिव सन बाथ टू योर होल बॉडी। हमारे नेचुरोपैथी में एक ट्रीटमेंट है, अगर किसी का जॉइंट पेन है तो वो अगर ना भी हो तो फ्यूचर में वो नहीं होना चाहिए। इसलिए हम रोज सन बाथ सुबह के 8 बजे से पहले जो सन होता है मॉर्निंग का सनलाइट वो हमारे बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इससे हमारे कभी भी जॉइंट पेन हमें आता नहीं है एंड अगर होगा तो वो भी अच्छी तरह से रिकवर हो जाएगा। जो भी हमारा पार्ट पेन हो रहा है मतलब अगर नी के बारे में हम देखेंगे तो ऐसे स्ट्रेचर लेग फ्रंट एंड जितना हो सके सनलाइट उसके ऊपर पड़ने दे। अगर हमें बैक पेन है तो अगर हम पीठ के बल सोएंगे, सॉरी मतलब क्या बोलते हैं उसे, अगर हमारा पीठ ऊपर की तरफ रहेगा जो सनलाइट जितना अच्छे से उससे लगेगा उतना वो रिकवर हो जाएगा। ये छोटी छोटी चीज है बट अगर हम डेली रूटीन में उसे इन्वॉल्व करेंगे तो हमारे फ्यूचर में आने वाले सभी प्रॉब्लम जो आने वाले वो कभी नहीं आएंगे। अगर किसी को डाइट के मतलब कुछ प्रॉब्लम हो तो प्लीज यू कैन आस्क मी डाइट कैसे हेल्दी बनाना है, इम्यूनिटी स्ट्रेंथ कैसे बढ़ानी है। अगर क्वेश्चन आंसर से होगा देन आई कैन एक्सप्लेन इट मोर
अच्छे से मैं एक्सप्लेन कर पाऊंगी आप सबको। तो इफ एनीवन हैज एनी क्वेश्चन अबाउट एनी डाइट और योगा यू कैन आस्क। डाइट का किसी को क्वेश्चन हो, डाइट कैसे हेल्दी मतलब। हाँ श्रुति, एक तो डाइट का भी क्वेश्चन, क्योंकि कुछ कुछ ये भी है, जैसे जो इसको थायराइड वगैरह है तो उसे क्या इनटेक लेना चाहिए ऐसे चीजों में। मैंने मैं तो बोला योगा का जो फ्लेक्सिबल है बट कर तो लेती हूँ, बट ये है कि वेट बहुत जल्दी वो होता है, गेन होता है। हमें मतलब मैं बता, मेरे हिंदी आप समझ लेना प्लीज, बिकॉज हाँ मेरे हाँ हाँ, नॉट टू वरी, नॉट वरी, आई अंडरस्टैंड। हाँ, अगर मतलब हमारा खाना पूरा भी कम नहीं करना है हमें। जितना हम रोज खाते हैं उतना ही खाना है। बट अगर हम कुछ मतलब सुबह अगर हम 3 चपाती ईट करते, तो दोपहर का हम खाना जो मील लेते हैं उसमें का जो मिडल टाइम होता है ना, मतलब अगर 3 चपाती खाते तो एक टाइम में नहीं खाना है, वो डिवाइड करके खाना है। अब एक लिया, फिर थोड़े दिन टाइम बाद एक दूसरी ली, और थर्ड टाइम में तीसरा, मतलब ऐसे हमारा डाइट को डिवाइड करना है। उससे क्या होता है, हमारा अच्छे से वो डाइजेस्ट हो जाता है बॉडी में। और जब डाइजेस्ट हो जाता है तब वो अल्टीमेटली पूरे बॉडी को उसका क्या बोलते हैं न्यूट्रिएंट वगैरह मिलते हैं, एंड फैट्स भी जमा नहीं होते। इसलिए जब जितना आप डाइट डिवाइड करोगे उतना आपके बॉडी के लिए वो अच्छा होगा। एंड जितना तो आप मतलब नेचुरल थेरेपी के पास जाएंगे उतना आपके बॉडी के लिए हेल्दी होगा वो। अगर हमने मेडिसिन, वो क्या होता है मेडिसिन हाँ खाते हैं, गोलियां वगैरह वो सब होता है वो हम खाते हैं, वो क्या होता है पेट में डाइजेस्ट नहीं हो पाता। जब डाइजेस्ट नहीं होता तो पेट के इश्यू हमें होते हैं, एंड उसके वजह से जब पेट हमारा खराब होता है ना, तब पूरा अपने बॉडी पर उसका इफेक्ट दिखता है। अगर अच्छे से हम हमारा खाना एब्सॉर्ब होता है, डाइजेस्ट हो रहा है, इजेशन हो रहा है, सब कुछ अगर अच्छे से हो रहा है, देन अल्टीमेटली हमारा पेट अच्छा रहेगा। जब हमारा पेट अच्छा रहेगा तो स्किन प्रॉब्लम, आगे ना कोई भी प्रॉब्लम हो तो रिकवर हो जाएगा। सब हमारे पेट से स्टार्ट होता है। अगर हमारा पेट हेल्दी रहेगा तो 99.9% हमारा जो कुछ हमारे प्रॉब्लम है वो सब रिकवर हो जाएंगे। मैंने बोला कि डाइट आप जितना आप खा रहे हैं उतना ही खाना है, कम नहीं करना है। कम किया तो क्या होगा, हमें जो न्यूट्रिएंट्स है वो कम हो जाते हैं। बट हमें जब खाना बनाए तो 45 मिनट के अंदर वो खाना खाना है। इससे क्या होता है, सब सब न्यूट्रिएंट्स हमें मिल जाते हैं। 45 मिनट के अंदर बनाया हुआ खाना 45 मिनट के अंदर खाना है हमें। योगा में भी थेरी के सेशन में सर बताते हैं कि खाना खाना है हमें। इसलिए सात्विक मतलब क्या, जो 45 मिनट के अंदर हम जो डाइट लेते, अगेन वी कैन से उबला हुआ लीफी वेजिटेबल, उसका पानी भी फेंकने देना, उसमें सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। हम क्या करते हैं, वो जो लीफी वेजिटेबल है वो खा लेते एंड पानी फेंक देते, सब प्रोटीन वगैरह उस पानी में निकल जाता है। अच्छे से लीफी वेजिटेबल्स धोने। अगर हम मतलब सिटी एरिया में रहते हैं तो पोल्यूशन वगैरह, वो लीफी वेजिटेबल भी अच्छे से नहीं, तो क्या करना है, वाटर लेना है, उसमें नमक डालना है, और उसमें 2 से 3 घंटे वो वेजिटेबल भिगो के रखने हैं। कोविड के कंडीशन में सभी लोग वेजिटेबल को हाथ लगाएंगे, उसमें बैक्टीरिया वगैरह क्या होता है वो सब आएगा ही। तो क्या करना है, पानी लेना है, स्वच्छ मतलब अच्छा पानी लेना है, उसमें नमक डालना है और वो वेजिटेबल भिगो के रखने हैं। उससे भी है, उसमें का जो कुछ मतलब केमिकल वगैरह होता है वो भी निकल जाता है। वो पानी फेंकने देना है, मतलब सब्जी बनाने के बाद वो पानी फेंकना नहीं, जब लीफी वेजिटेबल के बारे में बता रही हूँ। एंड स्प्राउट जब हम लेते हैं तो क्या करना है, रात को अच्छे से धोना है, एंड ज्यादा पानी डालना है उसमें। सुबह वो पानी ड्रिंक करना है। आपने अगर हम जितना चाय लेते हैं सुबह के वक्त, जो कुछ लेते हैं मतलब उतना अगर सबने लिया घर में, तो वो सब प्रकार के हमें मिनरल्स न्यूट्रिएंट जो कुछ होता है उसमें वो सब मिल जाएगा। अल्टीमेटली हमें हमारे क्या बोलते हैं इम्यूनिटी पर वो अफेक्ट करेगा। एंड जो स्प्राउट होते हैं वो फेंक देने से अच्छा सुबह आप उसमें मसाला वगैरह कुछ डाल के आप वो एज अ नाश्ते में वो खा सकते हैं। बट हम सुबह क्या करते हैं, सुबह हम नाश्ता लेते हैं,
अगेन दोपहर को लंच एंड रात को डिनर। बट कैसा लेना है, नाश्ता जो लेते हैं वो पूरी तरह से पेट भर के नाश्ता होना चाहिए। मतलब जो खाना सुबह खाते हैं ना वो पेट भर के खाना चाहिए। एंड अगर हम सुबह 3 चपातीस खाते हैं तो वो लंच के वक्त 2 में डिवाइड करना है एंड डिनर के वक्त 1 में। एंड डिनर भी कब लेना है, जब सन होता है, मतलब इवनिंग के टाइम डिनर लेना है, रात को नहीं लेना है। जब हम रात को लेते हैं तो क्या होता है, रात में लेने से हम डायरेक्ट सोने चले जाते हैं, फिर वो अच्छी तरह से स्टमक में डाइजेस्ट नहीं होता। हमारे डिनर एंड सोने के वक्त में 2 घंटे का गैप होना चाहिए। अगर हम इवनिंग के वक्त हमारा डिनर लेते हैं तो अच्छे से स्टमक में एब्सॉर्ब होता है, डाइजेस्ट होता है। एंड सुबह ज्यादा जितना हो सके उतना पेट भर के खाना है। हम क्या करते हैं, सुबह थोड़ा खाते हैं, दोपहर को थोड़ा सा ज्यादा, एंड रात को इतना ज्यादा खाते हैं कि वो अच्छी तरह से पेट में डाइजेस्ट नहीं होता। तो क्या करना है, सुबह जितना हो सके उतना खाना है, इवन लंच के टाइम जरा कम करना है, एंड इवनिंग के टाइम पूरा कम करना है। मतलब सुबह अगर हमने 3 चपाती खाए तो लंच के वक्त 2 एंड इवनिंग के वक्त 1 चपाती, ऐसे हम डिक्रीज करना है हमारे। अगेन एनीवन हैज क्वेश्चन? यस, यू कैन आस्क। वॉइस नहीं आ हेलो रहा है। मैडम। हाँ बोल। हेलो। यस हेलो। यस, आपका वॉइस आ रहा है। हाँ मैडम, मेरा एक्चुअली मेरा जो बेली फैट है, मतलब मैं योगा कर रही हूँ लेकिन बेली फैट अभी भी कम नहीं हो रहा है। मतलब डायग्नोसिस हो सकता है क्या? कुछ अच्छे से समझ नहीं आया, प्लीज पहले फिर से बताएंगे। मेरा जो बेली फैट है ना वो बहुत ही ज्यादा है। मतलब मैं योगा कर रही हूँ फिर भी कम नहीं हो रहा है बेली फैट। नॉर्मल नहीं हो रहा है, मतलब बेली फैट बहुत ही ज्यादा है। तो आपको कोई ये बैक पेन का इश्यू वगैरह नहीं है ना? नहीं, मेरा बैक पेन नहीं है लेकिन मेरा पॉलीसिस्ट है। क्या है? पॉलीसिस्ट। अच्छा, आप क्या करें, जितना मतलब साइड बाय बेंडिंग, फॉरवर्ड बेंडिंग जितना हो सके, एंड आप एक्सरसाइज करते हो ना तो विदाउट काउंटिंग, मतलब जितना हो सके कंटिन्यू एक्सरसाइज कीजिए। मतलब मैं जो रिलैक्स बोलती हूँ, आगे स्टार्ट बोलती हूँ, ये करना नहीं है। जितना मतलब ओके। जिस एक्सरसाइज से हमारा स्वेट बाहर निकलता है, जितना फैट्स हमारे रिलीज होता है, ऐसे एक्सरसाइज करने हैं। फॉरवर्ड बैकवर्ड बेंडिंग, साइड बाय बेंडिंग, ये जो बेंडिंग के है, तो जिससे हमारा स्वेट निकलेगा, ऐसे एक्सरसाइज करने एंड फास्ट में करने। जब फास्ट में करेंगे तो हमारा स्वेट बॉडी से रिलीज होगा। जब स्वेट बॉडी से रिलीज होगा तब हमारा फैट्स भी अल्टीमेटली स्वेट के साथ निकल जाता है, एंड देन इट विल मतलब हमारा बेली फैट वगैरह है वो कम हो जाएगा। अब बेली फैट के लिए आप फॉरवर्ड बेंडिंग ज्यादा कीजिए, उससे भी वो कम हो जाएगा। आप डाइट मैंने क्या बताया, मैडम, क्या बोले आपने? क्या क्या पीना है? फॉरवर्ड बेंडिंग एंड साइड बाय बेंडिंग, ऐसे जो आसन होते ओके। हैं, मतलब साइड में बेंड करना, अगर फॉरवर्ड बेंडिंग, बैकवर्ड। बैक में भी जब हम सूर्य नमस्कार के वक्त हस्त उत्तासन बैक जाते, तब भी हमारा वो स्टमक बेली स्ट्रेच होता है। इससे क्या होता है? यस, सिया जी, हाँ यू कैन आस्क। वॉइस नहीं आ रहा है आपका, सॉरी। अभी आ रहा है? नहीं, श्रुति, am I audible now? One second. नहीं, आई एम नॉट एबल टू लिसन, मतलब आपका वॉइस ही नहीं आ Am I रहा। audible? Am I audible now? यस यस, नाउ यू आर ऑडिबल। या एक्चुअली ऐसा है कि मुझे कोविड हुआ था, ठीक है। अच्छा। मुझे रिकवर होके 1.5 महीना हुआ है अभी। तो मैं अच्छा। पहले भी योगा करी थी, अभी भी कर रही हूँ। तो थोड़ी सी थकान होती है मुझे, मतलब हो रही है, मुझे पता है थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन कुछ सजेस्ट करोगी जो मुझे अपनी डाइट में इंक्लूड करना चाहिए? अगर हमने सुबह योगा हो गया, हमारा सुबह का जो योगा का सेशन होता है, उसके बाद क्या करना है, वार्म वाटर, मतलब पानी को थोड़ा गर्म करना है, उसमें शहद हनी डालना है, वो वाटर ड्रिंक कर सकते हो। एंड आगे आप क्या कर सकते हो, मैंने बताया हल्दी वाला दूध लेना है, उसमें प्योर घी होता है ना, वो डालना है। घर पर हम जो घी बनाते हैं मिल्क से, क्या होता है, वो जो होता है हमारे बॉडी के लिए अच्छा होता है। अगेन यू कैन, जो नमक का पानी होता है उससे गुल्ला करना है, अदरवाइज यू कैन ड्रिंक इट, उससे कफ वगैरह भी रिकवर हो जाता है। अगेन एनीवन हैज प्रॉब्लम, तो आप अपना डाइट अच्छे से मेंटेन करो,
कोई भी प्रॉब्लम आपको होगा नहीं। जितना सात्विक डाइट आप लोगे, मैंने जितना बताया आपको, प्लीज आप उतना अपने डेली रूटीन में इंक्लूड करना स्टार्ट कर दो। वो अल्टीमेटली हमारे सब डिसीज वगैरह होता है वो कम हो जाएगा। अगेन एनीवन हैज प्रॉब्लम? Anyone has any problem? Please unmute yourself. श्रुति अब Hello? इनहेल और एक्सेल का कैसे? हेलो। हाँ, yes, बोलिए। हाँ, एक्सेल और इनहेल एंड एक्सेल का ना, जैसे मुझे कैसे पता चलेगा कि हमने कई बार कुछ एक्सरसाइज है जिसमें आइडिया नहीं लगता, जैसे सूर्य नमस्कार में कई स्टेप्स हैं, तो वहां पे एक्सेल और इनहेल का कैसे, जब हम क्या प्रोसेस हमारी है? बॉडी जब स्ट्रेच करते हैं तब इनहेल करना है, एंड जब हम फॉरवर्ड बेंड करते हैं तो एक्सेल करना है। मैंने बताया अभी सूर्य नमस्कार करते वक्त ऊपर जब जब फॉरवर्ड हाथ लेंगे हम, तब इनहेल, फॉरवर्ड बेंड करते हुए एक्सेल। अश्व संचालन को इनहेल करना है। इनहेल यस, आवाज आ रहा है मेरा? हेलो, आवाज में क्लियर नहीं आ रही, वो क्लियर आज नहीं है आवाज श्रुति। महाराष्ट्र में साइक्लोन कंडीशन है, इसलिए थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम होगा। नॉट अब आ टू रहा है वरी, मेरा नॉट। आवाज? हेलो, यस, आपको आ रहा है मुझे आवाज? प्लीज यू कैन आस्क क्वेश्चन। हेलो श्रुति, मुझे ये पूछना था, अभी जैसे आपने हल्दी वाटर का बताया, तो क्या हम वो योगा से पहले ले सकते हैं? नहीं, योगा से पहले नहीं लेना है, योगा होने के बाद। सर ने बताया हमें कि हम जब योगा करते हैं तो हमारा पूरा स्टमक एम्प्टी होना चाहिए, कुछ भी होना नहीं चाहिए उसमें, इसलिए योगा के बाद ये सब करना है। सर ने भी हमें बताया है ना, पानी ड्रिंक, मतलब वाटर ड्रिंक नहीं करना, कुछ भी नहीं। मैंने जो बताया वो सब योगा के बाद करना है। आप अपना डाइट हेल्दी करो, 45 मिनट के बनाया हुआ खाना 45 मिनट के अंदर खाना स्टार्ट करो। अल्टीमेटली आपका सब स्टमक का जो प्रॉब्लम है वो पूरी तरह से, मैं 99% गारंटी देती हूँ। अगर कुछ हुआ नहीं तो आप मुझे फोन करके भी पूछ सकते हो, इतना उसका इफेक्ट हमारे बॉडी पर होता है। ओके योगा के बाद करना है। ओके, थैंक यू। Okay, we'll go for closing prayer. Join your hands, close your eyes. Take deep breath. Om Sahana Bhavatu Sahanau Punaktu Sahaviryam Karvavahe Tejasvinavadhitamastu मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। Rub your hands when it get warm. Massage it on your face. सभी लोग भद्रासन में आएंगे। हमने जो कुछ सूर्य नमस्कार, आसन, प्राणायाम किए वो सब हम भगवान को समर्पित करेंगे। हमारे गुरु को थैंक्स बोलेंगे। हमारे लिए लाइफ में जिन्होंने कुछ ना कुछ किया उन सबको थैंक्स बोलेंगे। हमारा फोरहेड जमीन पर रखकर हम सबको धन्यवाद और नमस्कार करेंगे। स्टार्ट। थैंक यू एवरीवन फॉर जॉइनिंग। कैसा लगा आज का सेशन? सबको समझ आया? वो आई हैव हैबिट ऑफ स्पीकिंग मराठी, सो मेरे हिंदी इज टोटली वीक, प्लीज आप एडजस्ट करिएगा। नहीं, वेरी हाँ नाइस, मैडम, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। थैंक यू। ओके, थैंक यू मैडम।